Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching Ahle-Vaid High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th, okay, mathematics, chapter number 12, quadrilaterals, exercise number 1. Now, in our exercise number 1, we have already done with question number 1 and question number 2. Now, the question number 3, as you can see on the board, already I wrote, the angles of a quadrilaterals are in the ratio of 2:3:4:6. Find the measures of each of the 4 angles. What is it meaning? जैसा कि ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ. हम क्लास 7th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 क्वाड्रिलैटरल्स. एक्सरसाइज नंबर 1 में ऑलरेडी हमने 1 and 2 प्रॉब्लम किया था. ये एक्सरसाइज नंबर 1 का ही प्रॉब्लम नंबर 3 है. तो क्वेश्चन तो इंग्लिश में आप देख रहे हैं, हिंदी में थोड़ा सा समझ लेंगे. देखिए क्वाड्रिलैटरल है बता रहे हैं, ठीक है. सपोज हम ड्रॉ कर लेंगे, क्वाड्रिलैटरल है बताया जा रहा, ठीक है, जिसका रेशियो क्या है बोल रहे हैं 2:3:4:6 वाला अप्रॉक्सीमेटली उसका रेशियो है. तो अब आपको क्या बताया जा रहा, फाइंड करो बोल रहे हैं द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स. जो ईच ऑफ द एंगल्स है उसको मेजर करने के लिए बताया जा रहा. तो हम वही सॉल्व कर लेंगे. पहले सॉल्व में आप देखिए लाइक पहले हम लिखेंगे गिवन, ओके, गिवन अ quadrilateral, okay, has in the ratio of 2:3:4:5, okay. Let x be the angle of quadrilateral, okay. For quadrilateral I am just writing in short form. So what I am doing here, as per क्वेश्चन के मुताबिक मुझे क्या करना है, QUESTION क्वेश्चन 2x plus 3x plus 4x plus 5x is equals to 360 degree. So why I am writing these, I will going to write the reason also. We know that the sum of the angles of quadrilateral are 360 degrees. So I wrote the reason also in the since bracket, okay. Sum of the angles of quadrilateral is equals to 360 degree. Now we need to just plus 2x and 3x, what it will, 5x, 5x plus 4x, 9x, 9x plus 5x, what we have with us, like 14x, okay. 14x is equals to 360, okay. After that x is equals to, we got like 360 by 14, isn't it? So what happen if we divide 14 to 360? Once again I am checking the question and answer. Given a quadrilateral has in the ratio of, given, okay, ratio of 2:3:4:5. Oh, here not 5, we have to write like 6, okay, because in question it is given at 6. So here also it become 6. Why 6? As per question 2x plus 3x plus 4x plus 6x is equals to 360. So it will become like 15, isn't it? So 15 means we got like 360 divided by 15. Now I am doing the divide here, 360 divided by 15. 15 to the, we have 30 with us, okay. We remains 36 minus 30, 6, okay, 0 comes down, it becomes 60. Like 15 for the we have with us like 60, okay. 15 for the हमारे पास क्या रहेगा, 60 रहेगा. So therefore we got like x is equals to what we got, 24 degree, okay. Angles, ANGLES, angles of angles, not here we can write like now for ANGLES, angles of quadrilaterals. First one we have with us like 2x, which is equal to like 2 into 24, and we got answer with us like 48 degree, isn't it? Second we have with us like 3x, which is equals to 3 into 24, okay. 24 3 we have nearly 72 with us, and this is 72 degree. Next we have like 4x is equals to 3 into, not 3, here we have to take like 4. So this type of errors we have to avoid, these students, all the student and viewers. 4 into 24, usually we have 425 is 100, but 100 minus 4 we got like 96. Here we can write directly 96 degree, and here we need to write degree compulsory because we are considering this is the final answer with us, okay.
Now after that we have 6x, 6 into 24. Again same logic, if 125 6 are 150, 150 minus 6 we have like 144 degree. Okay, so here we got answer. If you want you can verify also. Okay, now therefore for angles ANGL, yes, angles of QUADRILATERAL quadrilateral are, okay, you want to use different marker, color marker, 48 degree, comma 72 degrees, comma 96 degrees, comma 144 degrees. This is your final answer. Now we have to check once, cross check we have to do, is it correct or not. Here I am doing cross check. Like first I am writing 144, okay, plus 96, 72 and 48. We have to directly plus 8 and 2 10, 10 6 16, 16 and 4 20 is here, 0 is as it is and we have to carry it out like 2. 6 plus 9 15, 15 and 7 we have 22, 22 plus 4 we have 26, 6 here and carried 2 here, it will like 360. So therefore our answer is correct, compulsory. Now the explanation part in Hindi. देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आपको दिया गया था क्वाड्रिलेटर के रेशियोज 2:3:4:6 दिया था, ठीक है। तो लेट एक्स बी द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक काम करेंगे हम इसको कंप्लीट फुल फॉर्म ही लिख लेंगे, बेटर रहेगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहा था बट लेटर ऑन इफ यू आर कंफ्यूज मीन्स इट विल रियली प्रॉब्लम टू अस। ओके, तो देखिए क्वाड्रिलेटर के है एज पर क्वेश्चन के मुताबिक क्या हो रहा है, 2x + 3x + 4x + 6x = 360 डिग्री। ये कहाँ से आया, सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री है। तो जब हम ये तीन चारों को प्लस करेंगे 2 3 4 6 को 15 आ गया, 15x = 36 नॉट 36 ये 360 डिग्री। तो x = 360/15। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24 हमको आंसर आया। तो ये x का आंसर हो गया 24। तो आगे हम आंसर कैसा करेंगे, लाइक नाउ फॉर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 2x 2 × 24, x की प्लस में हमने लिखा है 48 आ गया, 3 × x तो ये क्या आ गया 3 अपनी जगह पे है, x की प्लस में मैंने क्या लिखा है 24। हियर पूरा में आप देख सकते हैं x की प्लस पे 24 24 24 24, वेरस कोएफिशिएंट उसका जो है जैसा था वैसा है, लाइक 2 3 4 6। तो ये फाइनल आंसर आपको आ गया। यू नीड टू कॉपी डाउन दिस। ओके, so hope you have copied question number 3. now question number 4 आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ मैं, आपको खुद को करना है ये, आप देख सकते। द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ड्रॉ दिस क्वाड्रिलेटरल इन योर नोटबुक, फाइंड ईच ऑफ देम। यानी कि 4 एंगल्स है कहते क्वाड्रिलेटरल के, वो इक्वल है, वैसा क्वाड्रिलेटर आपको ड्रॉ करना है और उसके 4 एंगल्स को आपको फाइंड यानी कि निकाल के लाना है। तो सबसे पहले आप ऐसा 360 / 4 करिए तो आपको आंसर आता 90। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाइए जिसके चारों साइड में 90 डिग्री होने चाहिए। तो चारों साइड से अगर 90 डिग्री आपको होना है बोलने पे आपको क्या करना पड़ेगा, वैसा इक्वल रहना है 90 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटर एज पर मी वो स्क्वायर होता है। आपका आंसर सिंपल क्या रहेगा, आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद बोलना है आंसर में द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर इज 90 डिग्री बोल के लिख दीजिए, आंसर हो जाता आपका। जैसा स्क्रीन पे मैं जैसा बोल रहा था आंसर अभी भी फ्लैश कर रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन लिख लेना, उसका आंसर सिंपल ये स्क्वायर उतार के द ईच ऑफ द आंसर भी मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन ए क्वाड्रिलेटर द एंगल्स आर x डिग्री, कॉमा x + 10 होल डिग्री, कॉमा x + 20 होल डिग्री, कॉमा x + 30 होल डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ये सिंपल लॉजिक है आपको, ये तीनों को भी ये चारों जो है ना x + 10 + x + 20 + x + 30 = 360 कर लीजिए आप। करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो पहले वाला एंगल हो जाएगा। फिर सेकेंड एंगल पे आपको लाइक x प्लस की जगह पे यानी x की वैल्यू डालेंगे +10 करेंगे, फिर उसके बाद x की वैल्यू डालेंगे +20 करेंगे, फिर x की वैल्यू रखेंगे, फिर +30 किया जाएगा। तो ये आंसर भी सिंपल है, आप खुद अपनी तरफ से कर ले सकते। तो अभी मैं ये स्क्रीन पे से ये आंसर
क्वेश्चन हटा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन कॉपी कर ले, आंसर आपको खुद करना है। और एक नेक्स्ट वाला है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कैन नॉट बी द इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:6y। तो ये क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मैं आपको लिखा देता हूँ। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कैन नॉट बी इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:6y, गिव रीजन। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछेगा आपको, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है। तो सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। सॉल्व में अपन लिखेंगे लेट x बी द एंगल ANGLE, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करा दे रहा हूँ, गिवन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। एज पर क्वेश्चन, एज पर QUESTION क्वेश्चन 1:2:3:6 cannot be the ratio of any quadrilateral QUADRILATERAL, ठीक है। प्रूफ PROOF। अब हमको प्रूफ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2x + 3x + 6x हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों होगा, आपको जैसा कि रीज़न मालूम है, क्या है उसका रीज़न, सम ऑफ एंगल्स ANGLES, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगेन एंड अगेन आई नीड टू राइट दिस, यू टू ऑल्सो राइट दिस, ओके, इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर बार बार आपको लिखना पड़ेगा, मुझे भी लिखना पड़ रहा है, जैसा आप देख सकते। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x + 2x 3x 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 6x 6x and 6x, this will be like 12x. 12x is equals to 360 degree, as the x is equals to 360 by 12. Why 12 divided by, here this 12 goes to divide. Now we are doing one divide with 360 and 12. 12 3 we have like 36. We get 0 means it will be here. So x is equals to, we got 30 degree. So now angles ANGLES, angles of quadrilateral. This is an important sum you need to go ahead with, okay. First we have like x is equals to 30 degree, okay. Next 2x is equals to 2 into 30, it will be like 60 degrees. Third we have 3x which is equals to 3 into 30 which is equals to 90 degree. Fourth we have like 6x which is equals to 6 into 30 which is equals to 180 degree. So 180 degree is an straight, STAIGHT, straight angle which 180 degree is an straight angle. That's why a quadrilateral never in the ratio of, hope you can understand, 1:2:3:6, ओके। क्वाड्रिलेटर में 180 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल है, उसी की वजह से वो नहीं होता। ये सिंपल सम था, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रीवियस सम्स के बेस पे ही मैंने किया था, बट ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने सॉल्व किया। आप देखिए, कॉपी कर लीजिए और समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है, जैसा हमने रेशियो निकाला x 2x 3x 6x के x की प्लेसेस पे हमने 30 लगा दिया, तो हम अब 30 60 90 180 आया। 180 डिग्री क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है, उससे क्वाड्रिलेटर कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता, ओके। Hope you have copied. Now we are starting our exercise number 2. But before starting the exercise number 2, I would like to explain few things related to the quadrilateral. You might have remembered that in our first class I said that there are types of quadrilateral with us like parallelogram, rhombus, rectangle, square, kite, trapezium, etc. So here we will going to tell the reason why parallelogram is an quadrilateral, okay, and why rhombus is an quadrilateral. This type of reasons we will going to learn. After that we will start our exercise number 2. Now listen carefully. Parallelogram is a quadrilateral
with both pairs of opposite parallels. That means पैरेललोग्राम क्या होता, एक क्वाड्रिलेटर होता जिसके पास दो पेयर्स है, किसके, पैरेलल के, ठीक है, दो अलग अलग पेयर्स है पैरेलल के। नेक्स्ट है उसका प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स उसके इक्वल रहते, ऑपोजिट एंगल इक्वल रहते और डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट रहते वन अनदर, यानी एक दूसरे को टच कर लेते हुए जाते। तो ये आपको पैरेललोग्राम की रीजनिंग है। नेक्स्ट है रोम्बस, अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस क्या है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम टाइप का है, उसके ऑल साइड्स क्या रहते हैं, लेंथ इक्वल रहेंगे। सो इसका भी सेम रीजनिंग है, जैसा कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके रोम्बस के अंदर पूरे प्रॉपर्टीज मिलके आते किसके, पैरेललोग्राम के, साथ ही साथ उसके जो डायगोनल्स रहते रोम्बस के एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी रहते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विथ ऑल राइट एंगल्स। रेक्टेंगल क्या है, एक किस्म का पैरेललोग्राम है जिसके अंदर पूरे राइट एंगल फॉर्म होते, तो इसमें भी ऑल प्रॉपर्टीज रहेंगे पैरेललोग्राम के, साथ ही साथ उसका ईच एंगल क्या रहेगा, राइट एंगल मेट करेगा और उसके डायगोनल्स इक्वल रहेंगे, कभी भी डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल रहती है। स्क्वायर, स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो एक रेक्टेंगल है स्क्वायर जिसके ऑल साइड्स इक्वल लेंथ में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास काइट है, ट्रेपेजियम है। तो ये टाइप के पूरे प्रॉपर्टीज और उसके क्वाड्रिलेटर के टाइप्स हैं। ये एक फिर आपको छोटा सा थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप चाहिए कि इसको लिख ले और याद कर ले, अच्छे से रिमेम्बर्स करें, ओके। सो एक्सरसाइज नंबर 2 में ये जो थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, आप खुद कर ले सकते, और कुछ उसके अंदर ट्रू और फॉल्स है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। ये ट्रू ऑल फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स मैं लगा रहा हूँ, बट मेक श्योर यू नीड टू सॉल्व दिस फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू ऑल फॉल्स बाय योर साइड। आई विल नॉट गोइंग टू डिस्प्ले आंसर, आंसर मैं इस पर डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी तो खुद करना चाहिए अपनी तरफ से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग खुद यानी कि एक खुद रीडर ब्राउज कीजिए, रीडर में रहेगा, यानी कि ओके आई विल गोइंग टू शो यू दीज वंस। Hope you have saw the answer, the reason why a square is a quadrilateral, parallelogram, rhombus and rectangle. So you need to copy this answer, very important, and you have to just solve the true all false and fill in the blank from your side. Apart from this, we have few more questions in our exercise number 2 you need to do by yourself. So hope our class is done and our chapter quadrilateral is also completed. In our next session, we will going to start one of our next and best chapter, one of my favorite, like area and perimeters. So this chapter we will going to start. So you are watching our YouTube channel name as Ahliabad High School and Junior College. I am Syed Rashid here taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. Make sure maintain notes. Notes is compulsory and try to practice more than one time. And in this maths we need practice and practice. Okay. Take care, have a great time. Thank you.